practitioners like ours, like me, or many of the journalist colleagues are sitting out here. Zero value है. और जो मैं कह रहा था कि नया मीडिया में चैलेंज खड़ा हुआ है, जो ग्रोइंग एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूं, कि why I mentioned New York Times, it is now the new practice that quote something which is concocted, which is loaded, which is planted. ये कोट अनकोट ये नए शब्द हैं जो हमारी जिंदगी का अब हिस्सा बन गए. प्लांटेड, लोडेड, कॉन्कॉक्टेड, डॉक्टर्ड, ये सारी चीजें जो हैं गढ़ी हुई, ये अब किसी न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट करके आती है. न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड दैट, ऐसा लिखा हुआ आता है. सो दैट एनी कंज्यूमर ऑफ द न्यूज, द वन हु इज कंज्यूमिंग न्यूज is more than convinced, नहीं ये तो सही ही होगा. The new word in our dictionary, in our lives is post fact, post truth. ये बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है कि पहली बात तो हम सच की ही बात नहीं कर रहे हैं और अब आधे सच को हम पूरा झूठ कहने में हिचक रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है, और उसके बाद हम पोस्ट फैक्ट की बात कर रहे हैं. The entire quest of human life, जब से ये मानव जाति बनी है तब से उसमें न्यूज के लिए क्यूरोसिटी है. आई एम श्योर कि एडम एंड ईव को भी कहीं ना कहीं ये जानकारी चाहिए थी. व्हाट इज दिस फॉरबिडन फ्रूट? एनीथिंग विच वी लुक फॉरवर्ड टू नोइंग, वो सारी न्यूज हैं जो हम शुरू से पढ़ते हैं कि लाइक द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड आर वेदास. Now, what do you mean by Veda? What is the meaning of Veda? Veda is to know, knowledge. Knowledge is news, basically. Because the moment knowledge gets spread across everywhere, that becomes news. As simple as that. So, to know is news. So, Vedas were news. We had heard in the beginning itself कि फिर वो अगस्त्य मुनि सत्य की खोज में निकल गए. Now I used to see in the beginning, I was a failure throughout my student life, so I used to devote a lot of time in understanding these silly things. कि सत्य की खोज में कैसे निकल गए? सत्य कहाँ कोई मिलता है, फल है, कोई पेड़ है, या कोई जगह है, कोई महल है या झोपड़ी है, क्या है? Now this सत्य was a shapeless truth. Now they were the real editors, they were the real journalists, so we called them sages, and we used to learn a lot of things from them. We used to respect them the most, and we used to believe them. Now exactly the same thing is happening so far as journalism goes, that more and more news items which you receive on a day-to-day basis, if you believe them, you become a reader of that particular news. In turn, the provider of that particular news, यानी कि वो अखबार, यानी कि वो channel, unlike many print journalists, I don't hate television channels at all, the news channels at all. I love them. Unlike many of my colleagues, they used to hate, and they still spread the kind of contempt towards the journalism which happens through browser, which you consume through browser, or the journalism which is limited to 5.5-inch screen, which is smartphone screen. Maybe 6.2 will be the highest, or if you use iPad, then 7.9, 9.7. There is the size of the world which give you the entire human life towards you. So I believe in that equally. Radio in India has not been given the full-fledged license to deliver news. I believe in radio news as well. But at the same time, believe in the sense what? These all medium fulfill the growing expectation. Growing expectation. When I use the word growing, I mean it. It's a very serious business. Growing in the sense
Today you read one particular news item. I give you an example very close to my heart. 25,000 people got killed. 25,000 people, approx, got killed in world's largest man-made disaster. You're more than aware, Bhopal gas tragedy. The government figure was 7,000 initially. The court cases and all led to some 17,000, approximately. I'm very weak on mathematics, so please don't trust me on mathematics, the numbers, but close to that. But the people who are working for the lives of the family who got destroyed and their dear ones got killed in that accident in 1983, they all got scot-free after 25 years of the case. Two petitions, two hearings in the Supreme Court, two opportunities in the Supreme Court. Chief Justice Ahmadi was heading the bench, and he equated the disaster, world's largest disaster, man-made disaster, was equated by no less than the Chief Justice of India, Honorable Chief Justice of India, Honorable Supreme Court of India, to a car accident, quote unquote. You can quote me on this. And said, when a car accident happens, if somebody gets killed, it is not intentional. So while you can term it as culpable homicide, but it is no murder. So the case of Bhopal gas tragedy, the killers were given 2 years imprisonment. 2 years. After 25 years of the case, nobody questioned it. So we took it up, we took it very aggressively, and as a Bhopal headquartered Dainik Bhaskar group, we took it on ourselves that come on, this is a great opportunity when we don't only look towards a kind of journalism which give us a lot of readers. No, this is not our goal. This could be the goal of a business, not of a journalist. So we took it upon ourselves, started a huge campaign of stories, and felt extremely frustrated because the growing expectation was not that you raised the issue. Growing expectation was, please bring the culprits back to books. We want them to see behind bars, behind prison. It was not possible because under the law, the Supreme Court can listen to a case, large hearing happens, any court of law, and then there is a verdict and then there is an appeal. A divisional bench will give a verdict. If you are not satisfied, go in for an appeal, then a larger bench will hear it. Larger bench, you are not convinced, go in for an appeal. But there are limitations, so ultimately there would be a particular number of judges sit. Maybe somebody is giving a note of dissent, and other one is agreeing to this. The larger opinion will become the verdict, and there will be verdict. So it was sent back to the Bhopal court, which gave them 2 years imprisonment. So we took it up, we challenged it, and included public in it. We ran editorials across the country, Rajasthan included, mainly Rajasthan helped it out. Letters were written, postcards got opened up, sent to the Supreme Court, to the members of parliament, to the leaders of opposition parties, to the government of the day, and just sharing that this culminated into reopening of the Bhopal gas tragedy case after 25 years.
as a curative petition. So this was the expectation, and this was the role of the media. Why this is very close to my heart? Because when we spoke to the editors, they said it is not possible. It is not possible. You keep on talking about it, it is not possible because the law of the land doesn't permit. Now, how do we respect law of the land? By going whole hog with practical approach. There is an Aristotle theory, there is a Platonic theory. One talks of a idealism. Idealism. At one of the sessions, somebody was saying, there has to be some streak of idealism, then only journalism would happen. With due regards to all the honorable speakers, I really disagree to the point. There is no idealism required. There is only human angle required. For becoming a journalist, you need to be a human. Now you would definitely mock at it. What human? We are all human. But what is human? Going by the Indian ethos, by the Indian culture, by the Indian learning which our forefathers had given to our fathers, our grandfathers, and our mothers have taught us, our teachers have taught us, our elders have taught us. You have to live for others. The more you give, the richer you are. The more you refuse, the poorer you are. That is journalism. That is the kind of expectation which all readers, all viewers expect from us on a day-to-day basis. Now I give you why we are trailing, why this trust is lacking. Trust is lacking not because some market forces are working. I am in journalism for 30 long years, 30. And that too, place by place, state by state. Every time my daughters got admitted to a school, they would make friends, they would come to a level of understanding, to a particular level of study, textbooks, teaching levels. I was uprooted and got transferred. So I may keep on moaning and groaning. I may keep on moaning and groaning. But why the hell are you in journalism? Not for moaning and groaning. I give you a small example. It had a very small, very silly example, but it had a lasting impression on my heart. While I was a child, I used to spend all my pocket money on newspapers. I used to buy 13 newspapers, and everybody would mock it, रद्दी है ये, इसको क्यों खरीद रहे हो, क्यों ला रहे हो, इसमें इतने सारे पढ़ भी नहीं सकते. There were always there was series of items. एक न्यूज हमेशा छपती, the Prime Minister called on the President. The Prime Minister called on the President. However, what transpired between the two could not be known. Naturally, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले और दोनों के बीच में क्या बात हुई, ये कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा. No more, not anymore. जब मैं कॉलेज में आया, I was reading both the literature. जब लिटरेचर आप पढ़ते हो तो आपको लगता है दुनिया बदलने की जिम्मेदारी आप ही पे है. So I asked a very senior editor, मौका मिला कि इनसे मिलने का, तो I always used to go, I always used to meet cricketers whenever opportunity happened, and I always used to meet कि मीडिया के कोई आदमी आया है कि मैं देखना चाहता हूँ दिखते कैसे हैं. आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने अखबार खरीदना शुरू किया, और दोनों में क्या बात हुई ये आपने कहा कि पता नहीं चला. यस, दीज आर ऑल कॉन्फिडेंट. वो तो बहुत बड़ी बातें होती, वो बताई नहीं जाती. तो मैंने कहा देखिए मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने अखबार खरीदा. अब आपको भी पता नहीं है तो मैं अखबार खरीदूं क्यों? आप और मैं तो एक ही हो गए. Now the expectations are so high that each and everything
पीपल वांट वेल इन एडवांस। मुझे परसों एक फोन आया कि आप देश के सबसे बड़े अखबार निकालते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं देश के सबसे बड़े अखबार के जितनी भी गलतियां होती हैं, हमारे 63 एडिशंस हैं, उनमें उन गलतियों का जिम्मेदार हूं, ये मेरा परिचय है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी ये गलतियां, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा पता चला आपने कहा। तो आपने क्यों नहीं बताया कि नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा? ऐसे नहीं, हमने बताया था बिहार में कि टेंशंस वर ग्रोइंग। तो उन्होंने कहा बिहार में बताया? आप तो कहते हो कि आप देश में हर जगह अखबार निकालते हो, यहां भी मैं दैनिक भास्कर है, ये तो अहमदाबाद है, ये औरंगाबाद है, यहां भी दैनिक भास्कर है, तो यहां क्यों नहीं बताया आपने? आई सेड सॉरी, ये गलती हो गई। तो कैसे हो गई गलती? थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। नाउ दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मॉडर्न डे रीडर, दे कीप अस ऑन टोज। हम ये नहीं कह सकते कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। वो कहते हैं आप सही गलत प्रिडिक्ट करेंगे तो वो जान ले लेंगे, वो गला पकड़ लेंगे। और हमारी भी आदत पड़ गई है कि हम जाके कहते हैं, क्योंकि हम टियर 3 टियर 4 इन टाउन्स में काम करते हैं जो एस्पायरिंग इंडिया है, वहां बहुत ही पावरफुल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एक्सट्रीमली पावरफुल इन दीज सिटीज, दीज टाउन्स। वो कहते हैं कि साहब, हम भी वहां जाते हैं, उनको कहते हैं कि साहब गलती होती है, आपने बताया बहुत अच्छी बात है, आप गला पकड़िए हमारा। फिर मैं धीरे से जोड़ देता हूँ कि पोलाइटली पकड़िएगा भाई, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग होते हैं और इतना स्ट्रांगली वर्डेड हमको बोलते हैं कि एक छोटी सी गलती पर वो हमारी किसी भी तरह से जान ले सकते हैं। और ये ग्रेट टाइम है, इसीलिए मैं डिटोरिएटेड वैल्यूज में बिलीव नहीं रखता। वैल्यूज तो ये नई वैल्यूज मिल रही हैं। एक तो ग्रेट एंशिएंट वैल्यूज हैं जो हमारे पास आई है, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस वी आर फॉलोइंग इट, ये वैल्यूज आई है, वो ग्रेट है। हम जो प्रैक्टिस गलत कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। इन द सेंस मीडिया एज ए टोटल, इन टोटलिटी, इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ग्रेट। सॉरी, आई एम डिसअपॉइंटिंग मेनी ऑफ यू। मीडिया इन इट्स टोटलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स जो गलती कर रहा है, वो पर्टिकुलर मीडिया, इन द सेंस कल्पेश याग्निक गलती कर रहे हैं, उन्होंने खराब लिखा है, उन्होंने गलत लिखा है, उनकी भाषा भ्रष्ट है, वो ही राइट्स अट्रोशियस, ये उनकी गलती है। एक आदमी ने गलत लिखा, दूसरे आदमी ने गलती की, तीसरे आदमी ने गलती की, दीज आर दी एरर्स, ब्लंडर्स। ब्लंडर्स किस तरह के होते हैं आप देखिए, एक बड़ी सी हेडलाइन छपी, व्हेन केदार ट्रेजेडी हैपेंड, वो फ्लड्स हुए तो भारी भरकम स्लाइड्स, लेंस the slides happened, तब छपा मोदी, नरेंद्र मोदी was chief minister Gujarat then. Narendra Modi flies to Uttarakhand. Narendra Modi lands in Uttarakhand, flies with 15,000 Gujarati pilgrims. और the story goes to suggest, आपने शायद याद नहीं होगा आपको, उस स्टोरी को देश भर में चला, खूब टीवी पे डिबेट हुई, बहुत सारी चीजें हुई। उसमें ये बताया था कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने 10,000 या 5,000 इनोवा की, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल फैसिलिटीज को इकट्ठा करवा दिया, उन्होंने बहुत सारी बसेस इकट्ठी करवा दी, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को वो करवा दिया, और 15,000 गुजरातियों को वहां से लिफ्ट करवा लिया। जब सारे लोग वहां फंसे हुए थे, हालत खराब थी, फ्लड्स में मतलब लोग मर रहे थे, ग्रेट ह्यूमन लाइव्स वर बीइंग लॉस्ट, तब ये स्टोरी चली, सब जगह चली। और फिर धीरे से किसी को लगा ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। बहुत बड़े अखबार में स्टोरी चली देश के, और ये स्टोरी पे डिबेट हुई, तारीफ से तारीफ हुई। ये जो डिजिटल मीडिया की बात चल रही है, वहां पे जो लिखा जाता है बहुत इरेशनली भी लिखा जाता है, रैशनली भी लिखा जाता है, कोट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, एवरीथिंग वाज कोटेड। और जो मैं कह रहा हूं, जो प्रैक्टिशनर, द प्रैक्टिशनर, आई डोंट वांट टू नेम हिम बिकॉज यू डोंट नो हिम एंड वुड नेवर बी एबल टू नो हिम, वो उनके नाम से छपी और बहुत बड़े लीडिंग जर्नलिस्ट थे, उनकी गलती नहीं है। एक बड़े अखबार ने खबर खड़ी की कि नहीं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, तो एक कि 15,000 लोग 4 दिन के भीतर
इस तरह से एयरलिफ्ट किए जा सके आउट ऑफ फ्लड्स। लेकिन हुआ, फिर धीरे से फिर अखबार ने क्वेश्चन किया, फिर तीसरे अखबार ने क्वेश्चन किया, फिर एक चौथी वेबसाइट ने क्वेश्चन किया, फिर एक पांचवें जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया, फिर एक छठे अपोजिशन ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चंस, these questions are the physical reflection of growing expectations, great questions, and this is a great tradition which we have inherited from our generations, from our forefathers, from our founding fathers. ये हमें मिले, और इस क्वेश्चन से ये एस्टेब्लिश हो गया कि नहीं नहीं सब झूठ था। एक स्टोरी जो देश में चलती है और ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई, सब झूठ था। क्योंकि पता चला कि साहब एक आदमी है, वो एक ऑफिस में, पार्टी ऑफिस में बैठा था, वो वहां का कोई बीजेपी वर्कर था। उसने कहा अरे साहब हजारों लोगों को बचाया है मोदी साहब ने। तो दूसरे ने कहा साहब 1000 नहीं 15,000 लोगों को बचाया है। तीसरे ने कहा कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, इतने इनोवा, इतने ये जो मैंने आपको बताया। Now everything is quoted, everything is bracketed as saying. At the same time everything was false. क्यों था ये? क्योंकि कह देने से काम थोड़ी चलेगा। कह देने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या आपने जांचा? रीडर कहता है, गला पकड़ता है, क्या आपने इसको चेक किया, क्रॉस चेक किया? प्लीज, जो फ्रेज है वो बहुत अच्छा फ्रेज है जो लाइफ में यूज करना चाहिए कि प्लीज हैव अ सेकंड लुक, इट कॉस्ट यू नथिंग। फूटी कौड़ी भी नहीं लगती आपको, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। लेकिन हम, because we journalists take great pride in saying no, there is a great sense of urgency. मैं क्यों चेक करूंगा, टाइम कहां है, मैं तो स्कोर करने आया हूं। फिर मैं प्रिंट मीडिया में, मैं टीवी को गाली देता हूं कि साहब वो जल्दबाजी में है। टीवी वाला कहता है भाई आपके पास तो जल्दबाजी नहीं थी, आपने क्यों किया? आपके पास तो क्रेडिबिलिटी ही इश्यू है। और इंटरनेट पे मैं कह देता हूं सब कोई आदमी ही नहीं जानने वाला। सो वी कीप ब्लेमिंग ईच अदर, बट एट द सेम टाइम the concept called media, the very concept called media is great. It was there by any name. It was there when Nar Nari were born, Adam Eve were born, आदम हवा पैदा हुए, इसी तरह आए। नोहाज आर्क में जो कुछ भी था उसमें शायद मीडिया भी होगा, क्योंकि मीडिया के बिना एक गांव में ये हुआ, पहले चिट्ठी लिखते थे, समाचार देना, समाचार भेजना, हर चीज मीडिया है। मीडिया से सिक्योरिटी मिलती है, मीडिया से आपको सिक्योरिटी टूटती भी है, इसलिए एक और मीडिया आता है। तो द कंक्लूडिंग पॉइंट is media is great. Practitioners are wrong and may be wrong, may remain wrong. कुछ भी गलत नहीं है। मैं गलत कर रहा हूं क्योंकि मैं मिस्चीवियस हूं, कोई दूसरा कर रहा है तो वो गलत है, मिस्चीवियस नहीं है तो केयरलेसनेस उसके पार्ट पे। किसी तीसरा मिस्चीवियस भी नहीं है, केयरलेस भी नहीं है, स्टिल कमिटेड एन एरर। वो इसलिए क्योंकि स्लिप अप है। एंड दिस आर ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यहां जितने बैठे हैं, जितने ऑनरेबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज स्टैंड अप इफ एनी ऑफ यू हैड नॉट कमिटेड एन एरर और इवन अ ब्लंडर इन योर लाइफ। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया नहीं है, क्योंकि खुदा ने ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं किया जो कभी भी कोई गलती ना करे। इसलिए हम सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो हमको टोस पे रखती है। And I am very proud of Indian media in particular. Indian media. अब आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा बाउंड्री से सिकड़ रहा हूं, but I am very proud of Indian media. ये इंडियन मीडिया ही है जिसने कभी भी किसी के बेडरूम में झांकने की कोई कोशिश नहीं की, as against British media. I am very proud of British media also, but not compared to Indian media. बहुत पीछे। मैं एक स्टूडेंट हूं जो British media, because it has got the oldest history of mass media. London Times 250 साल पुराना है। Guardian is a great newspaper। कल आप सुनेंगे Guardian के किसी साथी को जिसने ये तक काम किया, इट इज रन बाय सोसाइटी, और उसने ये काम किया जो आई वॉन्ट टू मेक वाइजर दिस ऑडियंस। दुनिया का शायद पहला ऐसा अखबार होगा
200 साल पुराना, जिसने 250-150 साल पुराने एक बहुत भारी भरकम अखबार के खिलाफ ये कैंपेन चलाया कि ये अनएथिकल गलत जर्नलिज्म करके पूरे इंग्लैंड को खत्म करने पे तुले हैं, और वो अखबार फिर अल्टीमेटली बंद हुआ, लेड बाय मुर्डोक। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड उस अखबार का नाम था, वो भी 150 साल पुराना था, जिसका कंटेंट चीप, हम कह सकते हैं हमारी लैंग्वेज में चीप था, लेकिन जिसका कंटेंट कभी भी चैलेंजेबल नहीं था, उसको बंद करवाया। एक अखबार ने लड़ाई लड़ी विद ग्रेट जर्नलिज्म, एक अखबार ने, रन बाय द सोसाइटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के रन अखबार ही चलते हैं। आपको मैं हिंदुस्तान का, जो हमारे क्लोजेस्ट है, दिल के बहुत करीब है, कि जब हमने कहा कि यहाँ पर जस्ट रीडर से मिलो, वो कहता था आपके वहाँ हत्या, आपके वहाँ चोरी डकैती एक्सीडेंट, सुबह उठते से ही अखबार में स्वाद बिगड़ जाता है, दिन बिगड़ जाता है। सो भास्कर हैड दी रियल डिफरेंट काइंड ऑफ ए करेज टू कम आउट विद नो नेगेटिव मंडे, जिसका आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने गजब का तहे दिल से स्वागत किया। आई एम नॉट हियर ट्राइंग टू टॉक दैनिक भास्कर, आई एम ट्राइंग टू टॉक जर्नलिज्म, कि उसके बाद से देश के हर बड़े अखबार ने गुड न्यूज का पैटर्न एक वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली शुरू किया। देश की बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने एनुअल इश्यूज निकालने शुरू किए, और जो अदर साइड ऑफ थिंग ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग। और नो निगेटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, या जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूशंस में डेवलपमेंटल जर्नलिज्म कोट अनकोट पढ़ाया जाता था। इट इज नथिंग लाइक दैट, रादर इट इज टोटली अगेंस्ट दैट, कि सरकार काम नहीं कर रही है। राजस्थान के गांव की कहानी है कि गवर्नमेंट वाज नॉट वर्किंग, उन्होंने वो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं दिए। भास्कर रिपोर्टर्स वेंट देयर एंड इंक्वायर्ड, दे डिडंट डू एनीथिंग, दे इंक्वायर्ड, और पता चला कि गांव के बुजुर्गों ने कहा कितने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने लोग चाहिए जो पढ़े लिखे हों। दे कंक्लूडेड कि ये 12 लोग चाहिए। तो दे इंक्वायर्ड फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स कि 12 लोग कौन ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 4 बाहर से, उन्होंने अपने ही रिश्तेदार जो बाहर चले गए थे उनको बुलाया, गांव वालों ने पैसे इकट्ठे मिला के दिए उनको, और उसके बाद वो स्कूल आज तक न सिर्फ चल रहा है बल्कि उसमें से टॉपर्स निकल रहे हैं। These are the kind of stories which get reflected, जिसमें जनता, लोग सरकारों का इंतजार नहीं कर रहे, धैर्य नहीं कर रहे और रिजेक्ट कर रहे हैं सरकारी चीजों को। उनके पास टाइम नहीं है। ये बुलंद भारत की एक अलग तस्वीर है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस। गुजरात के एक गांव की छोटी सी बात निकली कि वहां पर उन्होंने कहा कि बहुत सारा महिलाओं को ताकत दो, महिलाओं को ताकत दो। क्या महिलाओं को ताकत दो? उन्होंने गांव के ही सारे सरपंच हट गए चुनाव से, उसमें यंग लोग भी शामिल थे। उन्होंने कहा नहीं, अपनी जो बेटियां हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो गांव की सरपंच बनेंगी। ये 2 साल पहले की स्टोरी है, और वो लगातार वहां सरपंच बनी हुई है। पंचायत पूरी गांव की बेटियों की ही है, और वहां बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी जाति, दलित, मुस्लिम, हिंदू, पिछड़े, बगैर ये किसी सोच के, बगैर किसी 71st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, ऐसे किसी अमेंडमेंट, किसी संविधान संशोधन, किसी चीज की जरूरत नहीं। और उन्होंने वो अपनी बेटियों को सौंप दिए, और वो गांव वहां का आदर्श गांव घोषित हो गया है। ये रिपोर्ट भी जर्नलिज्म ही करता है, और 2G भी जर्नलिज्म लाता है, CWG भी जर्नलिज्म लाता है। मैं नहीं लाऊंगा, वो लाएंगे। न्यू थ्योरी इज टोटलिटी में देखिए आपको मीडिया को, एक राइट की तरफ है मीडिया, एक लेफ्ट की तरफ। एक कहता है गौ रक्षक खराब है, एक कहता है काऊ। प्लीज काऊ को देखिए, गाय बहुत अच्छी है। मैं पागल हो जाता हूं कि हमको ये विचारधाराओं में आप बांध क्यों रहे हैं। वी डोंट नीड एनी विचारधारा, वी नीड वैरायटी ऑफ विचार। बहुत सारे विचार चाहिए, हमको कोई विचारधारा में नहीं बनना है। और इसलिए वही मीडिया ग्रेट होगा, वही मीडिया लोगों के दिल के करीब होगा, वही मीडिया इमोशनली कनेक्टेड होगा, और वही मीडिया, माफ कीजिएगा, वही बिकेगा या पढ़ा जाएगा या देखा जाएगा। अगर किसी को बिकने और देखे जाने की चिंता है तो मुझे नहीं है, हमें नहीं है, यंग लोगों को नहीं है। वो तो ट्रुथ चाहते हैं, तो वो वही होगा जो किसी भी विचारधारा से बंधा हुआ बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी तरह की, न लेफ्ट न राइट न सेंटर। अगर उसको लगता है कि लेफ्ट गलत है तो वो लेफ्ट को क्रिटिसाइज करेगा, राइट गलत है तो राइट को क्रिटिसाइज करेगा। वो कहेगा जनगण मन में खड़े होना है तो वो खड़ा होना पसंद करेगा, क्योंकि ये राष्ट्रगान है।
नेशनल एंथम है, अगर वो कहेगा वंदे मातरम अगर स्कूल में लागू है, अगर उसको लगता है कि साहब जरूरत नहीं है, एक कम्युनिटी कहती है कि नहीं हमें नहीं है, हम इसको मां नहीं मानते, फाइन, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है ये। तो जो अच्छा होगा, जो ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर होगा, वही जर्नलिज्म में रिफ्लेक्ट होगा, वही जर्नलिज्म ग्रेट है। उसी जर्नलिज्म को मैं बिलोंग करना चाहता हूं, उसी जर्नलिज्म को जीना चाहता हूं। इसमें गलती कर रहा हूं तो प्लीज गला पकड़िएगा, पोलाइटली पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। Check one. Well, thank you very much, sir. Thanks a lot for your insightful address and for touching upon the various challenges and aspects of media and journalism. Thanks a lot. Any questions? Okay, we'll take just 2 questions because we have our next speaker lined up. Yeah. Can you pass on the mic to him? If you can be a bit loud and you can ask your question. Okay, you can take this one. Sir. सर, आप प्रिंट मीडिया से हैं और मैं भी मीडिया ही कहो, प्रिंट। ओके, मैं भी बिकम ए जर्नलिस्ट, आपसे सवाल करना चाहूँगा। अभी जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम वर्चस्व देखें, कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया अपनी हिंदी भाषा, अगर मातृभाषा की हम बात करें, आप हिंदी में अगर प्रिंट निकाल रहे हो तो उस भाषा की कहीं ना कहीं वैल्यू है और उस भाषा में सहूलियत भी है, एक तरह से वैल्यू भी है। वहीं बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कल मैं एक चैनल देख रहा था आज तक, उसमें बात कही गई लालू यादव और नीतीश कुमार की न्यूज़ चल रही थी। उसमें बात हुई कि एक टॉपिक आया, लालू यादव ने कहा कि पार्टी का हम बेस मजबूत करेंगे, तो एंकर कहता है कि लालू को बेस पसंद है। ये हमारी मीडिया की एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्राम आ रहा था उसके अंदर ऐसी लैंग्वेज यूज़ की। उसके बाद कहा नीतीश कुमार बेवफा। तो कहीं ना कहीं हिंदी जो भाषा है, एक आप जर्नलिस्ट हो तो कहीं ना कहीं भाषा का आप उपयोग कर रहे हो तो उसमें एक मान्यता वाली बात होनी चाहिए कि अच्छे से शब्द आप यूज़ कर रहे हो तो बेटर है। तो कहीं ना कहीं अब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें भाषा का बड़ा टकराव हो रहा है, तो इसके सुधार के लिए क्या आगे कदम उठाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए? कोई कदम की बात नहीं, जो मैंने कहा प्रैक्टिशनर्स, आपकी भाषा आपकी है, उनकी भाषा उनकी है, और कोई भी पब्लिक फोरम में पब्लिक जब लोगों के बीच आप बात करते हैं तो प्लीज़ वही लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आप बहुत ख़राब बोलते हैं तो पब्लिक में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इसके लिए कोई सुधार के लिए कोई मतलब मैं तो बहुत छोटा आदमी उसके बारे में बात करने पर। भाषा की कोई सुधार नहीं है, भाषा तो आदमी की इंडिविजुअल होती है, और अल्टीमेटली रीडर, अगर मैं ख़राब भाषा बोल रहा हूँ तो एक आदमी भी मुझे स्वीकार नहीं करे, जैसे आपको चुप गया नहीं है। यस, बस। और मैंने एक भी शायद आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला, तो आपको नहीं चुका। थैंक यू सर। हो गया? Check. Thank you so much. बताइए। Well, thank you so much, Mr. Yagnik, for addressing the question. Okay. All right. We'll take the last question. आवाज़ आ रही? अभी भाषा का एक सवाल यहाँ पे हुआ कल्पेश जी आपसे। मैंने आपको भी सुना आज पहली बार। आपके अखबार का जो हिंदी प्रयोग है, आपका अखबार में जो हिंदी का प्रयोग हो रहा है जिस तरह से, उसको मैं वर्षों से देख रहा हूँ। क्या किसी अंग्रेज़ी अखबार में अंग्रेज़ी के साथ ऐसी छूट ली जाती है जैसे आपके अखबार में हिंदी के साथ?
क्या कोई कोई अंग्रेजी का संपादक, मैं कड़वा सवाल पूछ रहा हूं पहले से क्षमा आपसे मांगते हुए, नहीं आप बड़े आप हिंदी के सबसे बड़े अखबार का संपादक अंग्रेजी में भाषण कर रहा है, कोई अंग्रेजी अखबार का संपादक हिंदी में भाषण करता है? मैं बहुत दुख के साथ ये सवाल कह रहा हूं। एक हिंदी के अखबार के संपादक से जब वो बोले तो उससे जो भी मेरे साथी यहाँ हैं, मेरा एक सवाल पूरा नहीं हुआ। हम जिस भी भाषा के संपादक हों, पत्रकार हों, और अगर हम उस भाषा के सबसे बड़े अखबार के संपादक हैं, तो हमारी भाषा से उस भाषा की महिमा, उसकी गरिमा, उसकी खूबसूरती, उसकी ताकत वो उभरनी चाहिए या एक दूसरी भाषा की? बस 3 ही सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जो भी मेरे साथी यहाँ भाई और बहनों ताली बजा रहे हैं, उनको मेरा बहुत सलाम है, उनको मेरा नमस्कार और धन्यवाद है। बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि मेरे दिल के करीब है ये सवाल। मैं किसी भी भाषा का किसी भी तरह से मोहताज नहीं हूं। मैं सिर्फ पहुंचना चाहता हूं लोगों तक। जब जो मेरे दिल में आता है मैं उस भाषा में कोशिश करता हूं कि पहुंचूं। अगर मैं बहुत गरिमामयी भाषा बोल के कोई पाखंड स्थापित करना चाहता हूं तो दुनिया में ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही धक्का पहुंचने वाली बात है। अगर मैं खुले मन से अपने दिल से, जैसे कि आपने देखा होगा, मुझे पता भी नहीं है कि मैं किस भाषा में बोल रहा हूं, मुझे पता भी नहीं है कि मैं कब किस भाषा में चला गया, मुझे पता नहीं है। और इसीलिए मुझे बाद में बहुत सारे लोग टोकते हैं, बोलते हैं और कहते हैं कि आप बहुत गलत करते हैं। राहुल जी के प्रति पूरा श्रद्धा है, वो कहते हैं आप बहुत गलत करते हैं, आपकी भाषा कौन सी है? मैं कहता हूं मेरी भाषा भारतीय है, मेरी कोई भाषा नहीं है। और मेरा अखबार जो हिंदी में निकलता है उसकी भाषा में भी बहुत बहुत स्पष्ट है कि भाषा वो जो लोगों तक पहुंचे। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ये भाषा अपाहिज हो गई है, ये भाषा खराब हो गई है। मैं मानता हूं पत्रकारिता अपाहिज नहीं होनी चाहिए, पत्रकारिता बुलंद होनी चाहिए, वो स्वस्थ होनी चाहिए, आपका विचार स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी तरह की भाषा का गुलाम मैं नहीं हूं। आपको एक खाली छोटा सा उदाहरण देता हूं इसका कि मेरे हर साल में 1-2 पीस, कभी शायद 4 पीस मेरे कॉलम है असंभव के विरुद्ध, जो मैं बहुत दिल से लिखता हूं, वहीं लाइव लिखता हूं, रात को 12 बजे तक लिखता रहता हूं, वो उसी समय छपता है। वो पूरा उर्दू में भी होता है, पूरा उर्दू में, पूरा ही उर्दू में होता है। और मुझे बहुत शुरू में लोगों ने नाराजगी जाहिर की, अरे ये क्या कर दिया आपने, ये क्या हो गया, आपको नया नया उर्दू का शौक चढ़ा। भाषा के कहां गुलाम बनना है आपको, सवाल ही नहीं है। आप अपनी बात रखना जानिए। कोई साथी आकर अगर कहता है, मैं बहुत सारे अंग्रेजी के इस्तेमाल करता हूं फ्रेजेस, मैं बहुत सारे हिंदी के फ्रेजेस इस्तेमाल करता हूं, मुझे संस्कृत का बहुत बहुत आनंद आता है क्योंकि वो दुनिया की सर्वाधिक साइंटिफिक लैंग्वेज है। संस्कृत में जानता नहीं हूं, उर्दू में जानता नहीं हूं, अंग्रेजी में जानता नहीं हूं, हिंदी भी पूरी नहीं जानता। और जो लोग दावा करते हैं कि वो सब ग्रेट हिंदी जानते हैं, वो जानते होंगे। मैं तो आपसे तादाद में स्थापित करना चाहता हूं, वो दिल से होता है। और दिल में, अगर आपने देखा होगा, एक भी कागज मेरे पास नहीं है, एक भी शब्द मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है, एक भी चीज मेरी जिंदगी में मैं याद करके, पढ़ के, बोल के नहीं आता हूं। मेरे दिल में जो होता है, इसलिए मैं दिल से संवाद बनाता हूं और यही मैं जर्नलिज्म के लिए चाहता हूं। ये मेरा निजी सोच है। बस इसके धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैंने पहले ही क्षमा चाही थी कि मैं अजीब बात करता हूं, डिसजॉइंटेड रहता हूं, इसके लिए मैंने माफी मांग ली थी आपसे। और मैं एक साधारण नागरिक हूं, मैं इतना बड़ा संपादक नहीं हूं कि मेरे पास बहुत सारी चीजों का बहुत ज्ञान हो। धन्यवाद।